الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، تمحید و تحلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو بے شمار انبیاء کرام پر، بالخصوص نبوت کی آخری کڑی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ اس آیت کریمہ کے اندر جتنی باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے، اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر دو چیزوں کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ٹوٹل 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، 8 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 8 باتوں کے اندر 8 باتوں میں سے 2 باتوں کی وضاحت آپ حضرات نے پہلے جمعہ کے اندر سماعت فرمائی۔ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے باتیں ارشاد فرمائی، اس کی تیسری وضاحت ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اے نبی ارشاد فرما دیجئے، کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ دادا، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ، وہ ابناؤکم اور تمہیں تمہارے بیٹے بیٹیاں، وہ اخوانکم اور تمہیں تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہیں تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہیں تمہارا خاندان، وہ اموال اقترفتموها اور تمہیں وہ تمہاری مال اور دولت، وہ تجارت تخشون کسادها اور تمہیں وہ تمہاری تجارت، جس تجارت کا خستہ حالی ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، کھو جانے کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن ترضونها اور تمہیں تمہارے وہ بلڈنگ و مکانات جس مکان میں تم رہ کر خوش ہوتے ہو۔ یہ 8 باتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ 8 باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، تمہیں پیار ہے، وہ جہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ 8 چیزیں اگر تمہیں محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو اپنے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی عذاب نہ آ جائے۔ یعنی ان ساری چیزوں سے محبت ہو، لیکن ان سے زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ سے محبت نہیں کرنا ہے، بھائیوں سے محبت نہیں کرنا ہے، بیویوں سے محبت نہیں کرنا ہے، مال و دولت سے محبت نہیں کرنا ہے، مکان سے محبت نہیں کرنا ہے، ساری چیزوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جائے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو مقدم جاننا چاہیے، ساری چیزوں کو قربان کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے۔ آئیے اس کی دلیل دیتے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، 313 صحابہ موجود ہیں، دشمنوں کا 1000 کا لشکر ہے مشرکین مکہ کا، اور جنگ بدر ہوتی ہے۔ اس جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 کافروں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ انہی کافروں کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کا سگا بھائی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ بدر کی لڑائی لڑ رہے تھے، اور سگا بھائی کافر کا ساتھ، ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر فتح نصیب ہوتی ہے اور اس جنگ کے اندر 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 کافروں کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں، جو کافر گرفتار ہو چکے تھے، قید کر چکے تھے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دے دیا کہ ان کافروں کے پیروں کے اندر بیڑیوں کو ڈال دو۔ جس ٹائم میں سارے صحابہ کافروں کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دے دیا کہ ہر کافر فلاں صحابہ فلاں کافر کے پیر کے اندر بیڑیاں ڈالے گا۔ ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ
आदि इब्न उमैर के पैरों के अंदर बेड़ियों को डाल दो, उनके पैरों की शिकंजा को टाइट कर दो। जिस वक्त आदि इब्न उमैर के पैरों के अंदर बेड़ियां डाल रही थी, बेड़ियां पड़ रही थी, उनका सगा भाई मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सगे भाई आदि इब्न उमैर के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देख रहे थे। मुसअब इब्न उमैर देख रहे हैं कि मेरे सगे भाई आदि इब्न उमैर के पैरों के अंदर भी बेड़ियों को टाइट किया जा रहा है। आदि इब्न उमैर कहते हैं कि जब नबी के सहाबी हमारे पैर के अंदर बेड़ियां डालने लगे, मेरा सगा भाई मुसअब इब्न उमैर अपने आंखों से खड़े होकर देख रहे थे। आदि इब्न उमैर को बर्दाश्त नहीं हुआ, ललकारते हुए अपने सगे भाई मुसअब इब्न उमैर को लानतान करना शुरू कर दिया कि ऐ मुसअब इब्न उमैर, तू मेरा सगा भाई है और सगा भाई होकर तुम देख रहे हो अपनी नजरों से कि हमारे पैरों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बेड़ियां डाल रहा है और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, खामोश हो। ऐ मुसअब, जो तुम्हारा बाप है वही हमारा भी बाप है। जिस बाप के नुत्फे से तुम पैदा हुए हो, उसी बाप के नुत्फे से मैं पैदा हुआ हूँ। ऐ मुसअब इब्न उमैर, तुम्हारा खून कहाँ सर्द पड़ गया, कहाँ ठंडा पड़ गया, आज तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अदी खामोश, ऐ अदी अपनी जुबान से एक अल्फाज नहीं निकालना। अरे मुझे तो अफसोस है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालने का हुक्म दूसरे सहाबी को क्यों दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। ऐ अदी, मुझे अफसोस है कि ये नेक काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब इब्न उमैर को देते तो कितना अच्छा होता। ऐ अदी खामोश, तुम्हारे जुबान से एक लफ्ज नहीं अदा करना चाहिए। कहा, मुसअब इब्न उमैर, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई तो वो है जो तुम्हारे पैरों के अंदर बेड़ियों को टाइट कर रहा है, बेड़ियां डाल रहा है। इसलिए कि उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है। वो हमारा इस्लामी और मुसलमानी भाई है, वो हमारा ईमान वाला भाई है, तुम मेरे भाई नहीं हो। मुशरिक एक मोमिन का भाई नहीं हो सकता है। वही इख्वानुकुम, अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, तुम्हें तुम्हारे भाइयों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। वहां में मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करके अपने सगे भाई आदि इब्न उमैर के साथ करके दिखा दिया कि तुम मेरे भाई हो। ये अलग बात है, तुम दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए हो, एक ही बाप के नुत्फे से पैदा हुए हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ कानून जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। यहाँ बात इस्लाम का है, यहाँ बात अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भाइयों से ज्यादा होनी चाहिए। वहां अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना वाले मदीना में रहना आपका दोभर कर दिए हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत का प्लान बना लिया कि ये मक्का वाले तो हमें यहाँ खुलकर इबादत नहीं करने देते हैं, हमारे नबी को चैन और सुकून से इस मक्के में रहने नहीं देते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत का प्लान बनाया। शाम हुई, बीवी को तैयार किया, बच्चे को तैयार किया और एक कपड़े के अंदर, एक झोले के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सारे असासा को, अपने पैसे और दौलत को झोले के अंदर रख लेते हैं।
सुबह होती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वाले हैं। मुसलमानों, इस्लाम की राह में ठोकरें हमने कहाँ खाई हैं, इस्लाम की राह में कुर्बानियां हमने क्या दी हैं, इस्लाम की राह में हमें तकलीफें और अजियतें हमने कितनी बर्दाश्त की हैं। वो नबी के सहाबा थे, नबी के हर अमल पर लब्बे को सादे कहने के लिए तैयार हो जाया करते थे। आज हम नबी की मोहब्बत में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हम अपनी नींद को कुर्बान करने के लिए नहीं तैयार हैं, हम अपनी जुबान की हिफाजत करने के लिए नहीं तैयार हैं, हम अपनी आंखों की हिफाजत करने के लिए नहीं तैयार हैं। वो सहाबा थे, नबी की मोहब्बत में अपनी गर्दनों को कटाने वाले थे। मोहम्मद की मोहब्बत आनो मिल्लत शानो मिल्लत है, मोहब्बत की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पेदर मादर बिरादर बाप माँ औलाद से प्यारा। वो सहाबा इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजार कर गए हैं कि जहां अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाया करती थी, माँ उनके सामने हेच हो जाया करते थे, बाप उनके सामने हेच हो जाया करते थे, दौलतों की दौलत पर उन्होंने लात मार दिया करते थे। लेकिन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के रास्ते में उन्हें आंच भी आने नहीं दिया करते थे। वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बीवी से कहते हैं, प्लान बनाते हैं कि कल यहाँ मक्का वाले रहने नहीं देते हैं, खुलकर इबादत नहीं करने देते हैं, कल हम मक्का से मदीना हिजरत करके अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाना चाहते हैं। तैयारी बना लेते हैं, ऊंट पर सवार हो जाते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्का छोड़कर मदीना जाने वाले हैं। ससुराल वालों को पता होता है, ससुराल वाले आते हैं, ऊंट की नकील को थाम लेते हैं। अरे अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहाँ जा रहे हो? कहा, अरे मेरे ससुराल वाले, मुझे मक्का में अल्लाह और उसके रसूल की इबादत नहीं करने दी जाती है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करने से रोकते हैं। मैं यहां से मदीना अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके जा रहा हूं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ससुराल वाले आते हैं, कहते हैं ये बीवी हमने दी है, बीवी को मैं ले जाने नहीं दूंगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बीवी को छोड़ते हैं, ससुराल वाले आते हैं, बीवी को छीन लेते हैं। घर वाले आते हैं, अरे अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहा हूँ, अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। कहा, अब्दुर्रहमान तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, लेकिन ये बच्चा जो तुम्हारे गोद के अंदर है, शीरख्वार बच्चा, ये हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, लिहाजा तुम जाना चाहते हो तो अकेले जा सकते हो, इस बच्चे को मैं ले जाने नहीं दूंगा। घर वाले आते हैं, बच्चे को छीन लेते हैं। कबीले और मोहल्ले वालों को खबर होती है, अरे अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इस ऊँटनी को तुमने इसी मक्के में रहकर कमाई है, और ये तुम्हारी एक झोले के अंदर, टोकरी के अंदर जो मालो दौलत है तुमने मक्के के अंदर कमाई है, लिहाजा इन सारी चीजों को मैं तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। ससुराल वाले आते हैं, बीवी को छीन लेते हैं, घर वाले आते हैं, उस शीरख्वार बच्चे को छीन लेते हैं, कबीले और खानदान वाले आते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी जिंदगी की कमाई पूंजी छीन लेते हैं, आपकी ऊँटनी छीन लेते हैं, रुपया और दौलत छीन लेते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ सारी की सारी चीजों को देकर बीवी ससुराल वालों को दे दिया, बच्चे घर वाले को दे दिया, सोना चांदी कबीले और मोहल्ले वालों को दे दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल चल दिए। मक्का से मदीने का सफर कई दिन का सफर चलते रहे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं कि जहां मैं थक जाता था, 1-2 घंटे के लिए बैठकर सुस्ता लिया करता था, फिर आगे निकल जाया करता था। कई दिनों का सफर तय करते करते अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जाकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय अब्दुर्रहमान खैरियत बताओ, कैसे आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं सारी दौलत को लुटाकर, बीवी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं कि जब मैं मक्का छोड़कर मदीना जाने लगा, मैंने अपने चेहरे को, अपनी नजर को अपनी बीवी के चेहरे पर नजर दौड़ाई। मेरी बीवी की आंखों से आंसू जारी थे। मैंने अपने दूध पीते शीरखार बच्चे को देखा। बच्ची की मोहब्बत मेरे दिल में जोश मारने लगी। लेकिन फिर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत है कि नहीं है? अपने औलाद से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो? अपने मालो दौलत से ज्यादा अपने रसूल को तुम महबूब कर चाहते हो या नहीं चाहते हो? मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हाँ, इन सारी चीजों से हमें महबूब हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीजों को कुर्बान करके अपने खाली हाथ में आपके पास आया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सारी चीजों को कुर्बान करके अपने ईमान को बचा कर चले आए हो, तो ये सौदा कोई सस्ता कोई महंगा सौदा नहीं है, बहुत सस्ते में नहीं पढ़ाए हो। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के खातिर उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, अपने मालो दौलत को छोड़ दिया। हमने अपने नबी के खातिर क्या छोड़ा है? एक सहाबी हैरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हैरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मुशरिकीन मक्का ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज हम शिकवा करते हैं कि हमारे नबी को गाली दी जा रही है, हमारे नबी को बुरा भला कहा जा रहा है, हमारे नबी के ऊपर टिप्पणी मचाई जा रही है, हमारे नबी का कार्टून बनाकर उसका मस्खरा और मजाक किया जाता है। सिर्फ हम जुबान से दावा करते हैं, हमारा ईमान इन सारी चीजों से खाली है। आज हमारी बदआमालियों का नतीजा है कि गैर कौमें हमारे नबी को गाली देते हैं, हमारे दीन को गाली देते हैं, हमारे कुरान को गाली देते हैं, लेकिन मुसलमान के कान ऐसे हैं कि मुसलमान के कान सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के सामने मुसलमानों के नबी को गाली दी जाती है, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेखता है। क्यों? आज हमारा ईमान अंदर से खाली हो चुका है, हम खाली जाहिरी मुसलमान नजर आते हैं। वो सहाबी हैरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुशरिकीन मक्का ने गिरफ्तार कर लिया, सूली पे चढ़ाने वाले हैं। सूली पे चढ़ाने से पहले मुशरिकीन मक्का ने कहा, ऐ हैरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, आखिरी आरज़ू क्या है, बतला दीजिए। हर मरने वाले से आखिरी उसकी तमन्ना पूछी जाती है। हैरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आए लोगों, मुझे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। लोग इजाजत दे देते हैं। हैरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वजू बनाते हैं, वजू बनाकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं, और उस नमाज को इतना लंबा नहीं करते हैं ताकि दुश्मनों के दिल में यह एहसास न पैदा हो कि देखो खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौत की डर की वजह से नमाज को तवील कर दिया, लंबा कर दिया। हैरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरमियानी नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद मुशरिकीन मक्का उनके सामने सवाल लगते हैं, क्या है खुबैब, तुम अगर अपनी जुबान से ये कह दो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारी जगह पर होते और तुम को इस जगह पर कत्ल ना किया जाता, सूली पे ना चढ़ाया जाता, अगर तुम अपने जुबान से ये कह दो कि आज हमारे जुबान पर खुबैब, हमारे जगह पर खुबैब ना होकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, अगर तुम अपनी जुबान से इस बात को कह दो तो हम तुम्हें आजाद कर देने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, आए मुशरिकीन मक्का, तुमने हमारे ईमान को परखा कहाँ है, हमारे ईमान को जाना कहाँ है? अरे तुम ये कहते हो कि हमारी जगह पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हमें इस सूली से लटकने से बच जाएं। तो आए काफिरों सुन लो, आए मुशरिकीन मक्का सुन लो कि खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी गवारा नहीं करता कि हमें इस सूली से बचा लिया जाए और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में एक कांटा भी चुभ जाए। वो सहाबा अपने नबी के पैरों में एक कांटा भी चुभना गवारा नहीं करते थे।
अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन नबी के पैर में एक कांटा चुभने के लिए बर्दाश्त नहीं करते थे। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत अगर तुम्हारे भाइयों से है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही, तो इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किसी नाकानी अजाब का। व अशीरतकुम, आए नबी कह दीजिए अगर तुम्हें तुम्हारे खानदान से ज्यादा रसूल महबूब है, उस अजाब का इंतजार करो। तुम्हें तुम्हारे खानदान से ज्यादा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। वो अज़वाजुकुम, बीवियों से ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है, किताबुल जिहाद, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, किताबुल जिहाद के अंदर, अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है। एक सहाबी नए ईमान लाए थे, नए मुसलमान हुए थे, और हर नमाज के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की दर्स दिया करते थे। वो सहाबी थोड़ी देर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स को सुना करते थे, लेकिन बीवी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करते थे, आपको बुरा और भला कहा करते थे। एक दिन वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजर की नमाज अदा करते हैं, आप अपने सहाबा को वाज़ नसीहत करने लगे। वो सहाबी बैठ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स को सुनने लगे। अपने घर पर लेट से पहुंचते हैं। जब वो सहाबी अपने घर पर आते हैं तो बीवी अपने शौहर से कहने लगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगी अपने शौहर के सामने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगी। वो सहाबी इस मंजर को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। सहाबी की निगाह घर के आंगन में जाती है। घर के आंगन में एक छुरी रखा हुआ था, ये खंजर था जिसको वो लोग उस खंजर से अपने ऊंट को नहर किया करते थे, ज़बह किया करते थे। वो सहाबी उस खंजर को उठाते हैं और अपनी बीवी के पेट में उस खंजर को डाल देते हैं। बीवी थोड़ी देर तड़पती है, वही खत्म हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो सहाबी दौड़ती हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुनहगार हूं, मैं कातिल हूं, मुझे सजा दे दीजिए, मैं हद को पार कर चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा गुनाह क्या है। वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बीवी का कातिल हूं, मैं अपने बच्चे का कातिल हूं, मेरी बीवी के पेट में बच्चा भी था, मैंने अपनी बीवी के पेट में ऊंट का नहर करने वाला खंजर डाल दिया, पेट फट गया, बच्चा भी जमीन पर गिर गया, बच्चा भी इंतकाल कर गया, बीवी भी इंतकाल कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें सजा दे दीजिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब आप फजर के बाद नसीहत किया करते थे, मेरी बीवी आपको बुरा भला कहती थी, आपको गाली देती दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ऐसे मेरी बीवी ने ऐसे नाज़ेबा अल्फाज आपके बारे में इस्तेमाल किए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने घर के आंगन में देखा, नहर करने वाला एक छुरी रखा हुआ था, एक खंजर रखा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्सा आया, मैंने गुस्से पे कंट्रोल न कर पाया, मैंने उस खंजर से अपनी बीवी को मार डाला, अपनी बीवी के पेट में उस खंजर को दाखिल कर लिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी देर बैठ गए, वही का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका वो सहाबी मुजरिम नहीं है, क्योंकि आपका वो सहाबी मुशरिका को कत्ल किया है, एक मोमिन को कत्ल नहीं किया, मुसलमान को कत्ल नहीं किया, एक मुशरिक को कत्ल किया है। वो अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी करने वाला था, और जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल को गालियां देता है, इस्लाम के अंदर सजा उसकी है कि उसको इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रखा जाए, कत्ल कर दिया। मुसलमानों वक्त इजाजत नहीं देता है। इस कड़ी की अभी 2 ही बातें हुई थी, बाकी ये बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा के अंदर जिंदगी रही को अर्ज किया जाएगा। आखिर में दुआ है कि बारी रहा हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिस तरीके से नबी के सहाबा अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक हम इस दुनिया में रहें, इस्लाम और ईमान पर कायम रहें, और हमारा खात्मा बिल खैर हो। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन।